Good morning. I will start sharp at 8:35.
Good morning, everyone. Hello. Now, today we will do the last part of the chapter and the miracles based on that. Okay? That is common ion effect. Then today maybe we will finish the chapter. एक minute. We will start with common ion effect. Correct? Am I audible to everyone? Hello? Hello? Am I audible? Okay. Okay. ठीक है. Now see what is common ion effect. Suppose I will say I have CH3COOH. ठीक है? It is your weak acid. When you are going to put it in the water, it will form CH3COO minus plus H plus. ठीक है? Now this dissociation is very small. बराबर है? Because it is your weak electrolyte. Now I will consider that you all know what is weak electrolyte. It will dissociate to the lesser extent. ठीक है? मैंने क्या किया अभी? I have taken this solution. I will put it in the water. It will form less number of these ions. ठीक है? Now I have its salt also. CH3COONA. अभी ये तो strong है. Why it is strong? Because it is a salt of strong base and weak acid. So it will dissociate as CH3COO minus plus Na plus and it will dissociate almost completely. अब होगा क्या देखो बीकर में था कौन सा solution CH3COOH. It will get dissolved. Its ionization takes place. It is a weak electrolyte. But मैंने क्या ऐड कर दिया अभी? I have added CH3COONA. What will happen? इन दोनों में से कौन सा आयन कॉमन है? एसिटेट आयन इज एग्जैक्टली कॉमन. तो क्या होता है जब कॉमन आयन के अंदर पड़ता है तो जो सोल्यूशन डिसॉल्व हुआ रहता है जिसका आयोनाइजेशन हुआ रहता है इट विल अगेन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी. उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. अंडरस्टूड? व्हाट आई सेड अगेन आई विल रिपीट. व्हाट आई सेड वी हैव this weak electrolyte which is acetic acid. It is a weak electrolyte, so it will dissociate to the lesser extent. You will get acetate ion and H plus ions. ठीक है? और ये बहुत कम बना मतलब इसमें डिसॉल्व हो गया. बराबर है? Now I will add the strong electrolyte. तो इन दोनों में से कौन सा आयन कॉमन है? Acetate ion is very common. So what this will do? It will suppress. Suppress करेगा मतलब it will decrease the dissolution or you can say ionization of weak electrolyte due to common ion effect. समझा? मतलब सेम चीजों में डालोगे तो जो आयन डिसॉल्व हुए थे वो वापस से बाहर आ जाते हैं. It will again form the PPT which is called as common ion effect. समझा अभी? What is common ion effect? अभी देखो दूसरा एग्जांपल देती हूँ. Suppose I have over here AgCl and I have AgNO3. अभी सपोज ये डिसॉल्व हो गया. ठीक है? मैंने इसमें AgNO3 डाला. इन दोनों में से कौन सा आयन कॉमन है? सिल्वर. So whatever has been dissolved, again it will come out. It will suppress its ionization. Suppress means lower. Ionization means dissolution. So whatever the PPT is there, it will again come out. That is called as common ion effect. सिर्फ कटायन का नहीं अनायन का भी ले सकते हैं. Suppose I will take over here. कौन सा लेंगे अभी? AgCl and NaCl. Correct? So this ion is common. So if this will get dissolved, it will get ionized. Dissolve हो गया मतलब ionized हो गया. But when I'm going to put this NaCl, this Cl is in common with both. So what will happen? It will get come out again. बराबर है? तो whatever the ions has been dissolved, it will come out again in the form of PPT, which is called as common ion effect. Understood this बच्चों? What is common ion effect? एकदम छोटा सा पार्ट था. I will repeat it once again. देखो. What I said here, I have a beaker. In this, I will take a very weak electrolyte, which is your acetic acid. Okay, it will give you the form of ions.
दैट इज CH3COO माइनस एंड H+। तो कैसे जैसे करके बेचारा डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, बट अब मैंने क्या ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3COO Na। अभी इन दोनों में से कौन सा आयन कॉमन है, तो पूरा डिसोशिएट हो जाएगा ना, CH3CO माइनस एंड Na+। तो होता क्या है, ये बेचारा डिसॉल्व हो गया था, लेकिन जैसे इसको डाला, ये आयन और ये आयन कॉमन है, तो ये क्या करेगा, ये जो डिसॉल्व हुआ था उसको बिल्कुल डिसॉल्व होने नहीं देगा, उसका आयनाइजेशन सप्रेस कर देगा, एंड वापस से यू विल गेट द पीपीटी। दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। समझा कि नहीं समझा? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? हेलो, हाँ, एनी क्वेश्चन इन दिस कॉमन आयन इफेक्ट में? यहाँ पे देखो आपके बुक में सेम एग्जांपल दिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है AgCl एंड AgNO3। देखो इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये क्या है, ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो जैसे इसको इसके अंदर डालेंगे क्या हो जाएगा, ये Ag कॉमन हो गया ना, तो ये क्या करता है, इसका जो सॉल्युबिलिटी है उसको सप्रेस कर देता है, वापस से आपका आयन बाहर आ जाता है, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। इतना सही बचा था अपना। अंडरस्टूड बच्चों? एवरीबॉडी प्लीज गिव मी अ क्विक yes if you have understood this common ion effect। ठीक है, इजी था ना एकदम। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे which is having same ion common ion, so it will reduces its ionization and वापस से पीपीटी बाहर आ जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। चलो लिख लो फटाक से, फिर मैं न्यूमेरिकल्स ले लेती हूँ, अभी हो जाएगा ये चैप्टर। 12 बजे शाम को दूसरा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। पेपर 1 सिखाओ कि पेपर 2 शाम को? व्हाट यू वांट मी टू टीच? पेपर 1 ही सिखाती हूँ, छोड़ो, थर्मोडायनेमिक्स सिखाती हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। लिखो बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट, राइट डाउन द हेडिंग कॉमन आयन इफेक्ट। रेडी? राइट डाउन। Common ion effect states that the common ion effect states that the ionization of weak electrolyte, the ionization of weak electrolyte is suppressed. The ionization of weak electrolyte is suppressed in the presence of strong electrolyte, in the presence of strong electrolyte containing an ion, very important, containing an ion common to the weak electrolyte, containing an ion common to the weak electrolyte। समझा common ion effect? I hope it is very clear. So here we have completed with the theory part। ठीक है, बाकी वो KSP और वो सब सेम दिया हुआ है, you can read it from your textbook also, page number 60 and 61। Same examples which I had given you, exactly same examples they have also given। ठीक है, खाली एकदम लंबा चौड़ा लिखा है, you can just read it at home। चलो न्यूमेरिकल्स ले ले। रेडी एवरीवन? इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स, अच्छा वापस से रिपीट करो। ओके ओके, सी व्हाट आई सेड हियर, सी कन्हैया, आई हैव टेकन हियर वीक इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसे ही जैसे तैसे करके रो रो के डिसोशिएट होता है, इट विल फॉर्म CH3CO माइनस एंड H+। ठीक है, थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया पानी के अंदर, बराबर है। अच्छा डेफिनेशन रिपीट करूँ? ओके ओके, आई थॉट आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ओके,
The common ion effect states that the ionization of weak electrolyte is suppressed, or you can write down lowered. The ionization of weak electrolyte is suppressed in the presence of strong electrolyte, in the presence of strong electrolyte containing an ion common to the weak electrolyte, containing an ion common to the weak electrolyte. ठीक है? I hope everybody understood. क्या रिपीट करूं? अच्छा, स्टार्टिंग से रिपीट करूं? ठीक है. See, we are doing over here now common ion effect. Common means same. Ion means same ion. ठीक है? See, I will take here CH3COOH. It is a weak electrolyte. It will dissociate very less CH3CO minus and H plus. ठीक है? Dissociate हो गया. अब मैंने क्या किया? In the same beaker, I will add CH3COONA. अब ये तो strong electrolyte है. ये कैसे dissociate हो जाएगा? CH3CO minus plus Na plus. तो होता क्या है? ये आयन और ये आयन आपस में कॉमन है, तो ये क्या करेगा? जैसे ही इसके अंदर जाएगा ना, इसका आयोनाइजेशन लोअर कर देगा. So whatever has been dissolved, it will again come out. That is called as common ion effect. Means जो strong electrolyte है, it will suppress the ionization of weak electrolyte. समझा? Why it will suppress the ionization of weak electrolyte? Because there is an ion which is common to this. समझा अभी? So that is called as common ion effect. Understood, Sujal? Have you understood? Hello? किसको नहीं समझा? Hello? Sujal, please reply. ओके ओके ठीक है. चलो अभी न्यूमेरिकल्स ले लेती हूँ इसके ऊपर. आपका चैप्टर हो गया बच्चों. ठीक है, चलो अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखो फटाफट. आई होप यू ऑल आर सिटिंग विद योर लॉग बुक्स. ये एक तुम लोग को करने को, ये 13.95 वाला कल आया ना अपने को सम. हाँ ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन. रेडी? A solution is prepared. A solution is prepared by mixing. A solution is prepared by mixing equal volumes of. Aryan, please mute yourself. Aryan Kale. A solution is prepared by mixing equal volumes of 0.1 molar MgCl2, 0.1 molar MgCl2 and 0.3 molar and 0.3 molar Na2C2O4. Na2C2O4 at 293 Kelvin. At 293
Kelvin, full stop, would MgC2O4 precipitate out question mark. Would MgC2O4 precipitate out question mark? They have given KSP of MgC2O4. इसको ऑक्सिलेट बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सिलेट, ठीक है। और जो पहले था वो सोडियम ऑक्सिलेट। KSP of MgC2O4 at 293 Kelvin is 8.56 into 10 raised to minus 5, ठीक है। KSP दिया हुआ है and we have to find out whether it will precipitate or not, ठीक है। कैसे पता चलता है precipitate होगा कि नहीं होगा? KSP is given. What you have to calculate here? Ionic product. Am I right? कल ही किया था ना हम लोगों ने। अगर ionic product solubility product से ज्यादा हुआ so precipitation will takes place. If it is lesser, precipitation will not takes place. और अगर equal रहा तो it is under the equilibrium condition. बराबर? condition क्या है देखो। If ionic product is greater than KSP, precipitation takes place. If ionic product is lesser than KSP, precipitation does not takes place. And if ionic product is equal to KSP, there is an equilibrium condition. अभी KSP तो दिया है ना अपने को. What we have to calculate here? IP. बराबर है? So, first of all, what they have said, we are going to prepare the solution by mixing 0.1 molar of magnesium and 0.3 molar of carboxylate ions. बराबर है? तो अब क्या होगा? When the solution is prepared by mixing equal volume, it will get doubled and the concentration will get half. आ रही है बात समझ में? मैंने क्या लिया? 0.1 मोलार लिया, ठीक है। और ये कितना लिया? 0.3 मोलार। जब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डबल हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को इक्वल वॉल्यूम का मिक्स कर दिया। सपोज ये x वॉल्यूम लिया, ये y वॉल्यूम लिया, तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा ना बच्चों। और अगर वॉल्यूम डबल होता है तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा कि नहीं? पहले इतना बोलो, समझा व्हाट आई सेड? बिकॉज वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं वॉल्यूम डबल करती हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। क्लियर? सो वी विल राइट डाउन व्हेन solutions are prepared by mixing equal volume, volume gets doubled, ठीक है, and concentration becomes half. तो मैं कैसे लिखूं अभी? concentration of Mg2 plus after mixing क्या हो जाएगा? 0.1 का half मतलब 0.05 and then concentration of oxalate ions 0.3 था, उसको मिक्स करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया मतलब 0.15। ये स्टेप समझा कि नहीं समझा? पहले इतना बोलो। किसको नहीं समझा? व्हाई आई मेड इट हाफ? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज गेटिंग हाफ ना, क्योंकि वॉल्यूम मेरा डबल हो गया। बराबर है? चलो अभी क्या था? मैग्नीशियम ऑक्सलेट दिया है, बराबर। मैग्नीशियम ऑक्सलेट क्या है बच्चों? MgC2O4 डिसोशिएट हो जाएगा, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया ना, Mg2 plus C2O4 2 minus magnesium and oxalate ions are combining together to give you MgC2O4, ठीक है। तो इसका आयनिक प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 plus एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट आयन। कल बताया था ना आयनिक प्रोडक्ट और KSP में क्या डिफरेंस रहता है? कौन बताएगा मुझे? What is the difference in ionic product and KSP? It is at all the concentration and KSP is only at the equilibrium condition. Understood? So put the value now. It is 0.05 and it is 0.15.
व्हाट इज आंसर? शिफ्ट कर दो, दैट इज 5 into 10 raised to minus 2 into 15 into 10 raised to minus 2. 15 5s are 75 into 10 raised to minus 4. ठीक है, अब देखो ये आ गया आयनिक प्रोडक्ट। बताओ मुझे अभी KSP से बड़ा है या छोटा है? KSP कितना था, किधर गया? 8.6 into 10 raised to minus 5. 8.6 5 भी था ना, क्या था? 8.56 सॉरी 8.56 into 10 raised to minus 5। अभी तुमको अच्छे से कंपेयर करना है तो एक और शिफ्ट कर दो, दैट इज 7.5 into 10 raised to minus 3। कौन बड़ा है दोनों में से? KSP बड़ा है कि आयनिक प्रोडक्ट बड़ा है? आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट बड़ा है ना, सो आई विल राइट डाउन आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP। तो प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा? Will precipitation takes place? Yes. The salt will show precipitation. आया सब समझ में? Understood? Yes or no बच्चों? Yes, ma'am. सबको समझा? लिख लो चलो। कैसे लिखेंगे? पहले इतना लिखो, यहाँ तक लिखो, फिर मैं कैमरा नीचे करती हूँ, फिर सॉल्व करो, ठीक है? ये तो लिखो, when volume is double concentration becomes half। तो इसका concentration half हो गया, इसका concentration half हो गया। फिर इक्वेशन लिख के you have to just add it, multiply it। पहले यहाँ तक लिखो, हो जाएगा तो लेट मी नो। मैं म्यूट करती हूँ सबको, ठीक है? ऊपर पकड़ती हूँ बच्चों, आप लोग लिख लो। When you finish up to this part, just let me know। एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, उसके नीचे लिखना as ionic product is greater than solubility product, precipitation will takes place। कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो। हाँ, if you're done with the sum, please notify in the chat box। ओके, समझा ना बच्चों? चैप्टर आपको अच्छे से इजी था ना? हाँ ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट सम पे जाए बच्चों। प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट as ionic product is greater than solubility product, it shows precipitation। okay, okay, chalo we'll go for the next sum now। ready? okay,
लिखो। कितने समय बताऊं तुम लोग को मैं अभी? 1 2 3 और है सम्स। चलो लिखो। द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट पेज, आई विल जस्ट टर्न माय पेज। The solubility product of AgBr, silver bromide. The solubility product of AgBr is 5.2 into 10 raised to minus 13. Minus 13, ना 13 minus 13 full stop. Calculate its solubility in. Calculate its, एक मिनट ना जरा इसका ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ. Calculate its solubility in moles per dm cube and in grams per dm cube. Moles per dm cube and grams per dm cube. ब्रैकेट में लिखो मोलार मास ऑफ AgBr 187.8 grams. 187.8 grams per mole. 187.8 grams per mole. चलो कैसे निकालेंगे? How will do? What do you think? What is the relationship between KSP and solubility? कौन बताएगा? एक इक्वेशन बताया था मैंने आपको. पहले लिखेंगे AgBr will dissociate as Ag plus and Br minus. X कितना है? 1. Y कितना है? 1. भूल गए तो मैं याद दिला दूं. This is 1. एक ही मोल है ना? This is also 1. What is the relationship over here? KSP is equals to x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y. याद आ गया? ठीक है. So what I will write down there for KSP is equals to 1 raised to 1, 1 raised to 1, s raised to 1 plus 1. तो क्या हो जाएगा अभी? I will write down here KSP is equals to s square. मुझे क्या निकालना है? Solubility. Correct? क्या करूँ बोलो? Taking square root on both the side. तो s is equals to square root of KSP. KSP का वैल्यू दिया है ना बच्चों? How much it is? 5.2 into 10 raised to minus 13. अब ऐसा minus 13 है तो मैं इसको क्या बना देती हूँ? minus 14 बना देती हूँ ताकि हम लोग इसको बाहर निकाल सके. ठीक है? So I will just make this as 52 into 10 raised to minus 14. ठीक है? फिर ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 52 इनटू ये बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? -7. चलो क्या करूँ आगे? हाउ विल यू अप्लाई द लॉग? कैसे लेंगे लॉग? स्क्वायर रूट है तो हाफ इनटू log to the base 10 52 into 10 raised to minus 7. इसका log निकालो, हाफ करो, एंटी लॉग निकालो, solubility आ जाएगा. इतना करो. चलो जो solubility आएगा that will be in mole per dm cube. Will you do this बच्चों? हेलो. यस मैम. हाँ हाँ प्लीज करो. देखो समझा ये कैसे करना है. इसका कैसे करेंगे? हाफ पहले लॉग निकालना 52 का, डिवाइडेड, फिर एंटी लॉग लेना. ठीक है? तो यू विल गेट द सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर डीएम क्यूब. पहले इतना सॉल्व करो और मुझे आंसर बोलो. प्लीज लॉग से करना प्लीज. नहीं समझेगा तो पूछ लो, बट लॉग ही यूज करना.
दिख रहा है क्या? उड़ रहे पेजेस, ठीक है चलो। वंस यू आर डन जस्ट लेट मी नो। हाँ, आराम से समझ के करो, कोई घाई नहीं है, अपने पास बहुत टाइम है। अपने को यही चैप्टर करने का है आज। शाम को आई विल स्टार्ट विथ थर्मोडायनेमिक्स। फिनिश्ड बच्चों? क्या आंसर आया? आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग के पास लॉग बुक है? आई थिंक यू आर नॉट सिटिंग विथ लॉग बुक्स। ऐसे मत करो प्लीज। प्लीज सॉल्व। एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग योर टेक्सचुअल क्वेश्चंस आल्सो जो पीछे दिए हुए हैं। ठीक है, मेक अ सेपरेट नोटबुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट। दोनों चैप्टर के सॉल्यूशंस के भी और आयनिक प्रोडक्ट के भी। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम आपका ये दिख रहा नहीं है स्क्रीन। नहीं दिख रहा है स्क्रीन? मुझे तो दिख रहा है। अब लीव होके वापस एंड करो। आंसर तुम लोग मुझे बताओ रे बड़ा। एक मिनट, कुछ लोगों ने आंसर पोस्ट किया है। हाँ करेक्ट है। सृष्टि करेक्ट आंसर, वेरी गुड। कशिश करेक्ट आंसर। हेली there is some गड़बड़। 10 raised to minus 7 is correct, but you have got that 2 point wala na, that is wrong. Srishti and Kashish got perfect answer. Good. Just check one, हाँ once Heli। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज स्क्रीन वापस से ये करो, लीव होके वापस ज्वाइन करो। हाँ करेक्ट प्रगति, वेरी गुड। Please solve it once again.
इट्स इजी, ट्राई करो वापस से, गड़बड़ करेगा किधर. First you take out log of 52, then divide it, and then take out its antilog. फिर easily आ जाएगा. Answer is, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, हाँ correct. 7.211 into 10 raised to minus 7 moles per dm cube. थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, no problem. जैसे कि some people got 7.165, that is also correct, no problem. Mega correct it is. अभी मुझे बताओ, how will you convert it to grams per dm cube? बोलो. याद है मोलार सॉल्युबिलिटी सिखाया था मैंने, तो क्या लिखेंगे अभी? सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू मोलार मास, याद आ गया, इनटू मोलार सॉल्युबिलिटी, मोलार मास इनटू मोलार सॉल्युबिलिटी. याद है ये फॉर्मूला हमने लिखा था, मोलार सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलार मास. उसी को रीअरेंज किया है. व्हाट इज द मोलार मास गिवन ओवर हियर? 187.8 into, ये मिला ना अपने को, 7.211 into 10 raised to minus 7, माइनस था ये, into 10 raised to minus 7. चलो मल्टीप्लाई करो, नहीं तो इसका भी लॉग एंटी लॉग करो, फटाफट हो जाएगा. Understood this sum? So whatever answer you will get, that will be in grams per dm cube. I hope everybody understood this. ऊपर पकड़ते हो. Solubility in grams per dm cube is equals to molar mass into molar solubility, because we have written the formula also. Molar solubility is equals to solubility in grams per dm cube divided by molar mass. ठीक है? Nelly, did you get the answer बेटा? Yes, ma'am. हाँ, okay. नहीं आएगा तो पूछो, I will solve with log, no problem. मेरे पास है log book. Just multiply this. Multiply से अच्छा मुझे लगता है log एंटी log करो, फटाफट हो जाएगा. Please take your time, solve it. जब सबका हो जाएगा, then only we will proceed. Don't worry. But please solve. Siddhant, please mute yourself, beta. Siddhant Jadhav, please mute yourself. चलो बच्चों, what is the answer? रुको, ऋषि ने क्या लिखा है? किधर है बेटा आपका आंसर? मेरे को दिखा ही नहीं ऋषि, आपका आंसर किधर है बच्चा? कहाँ लिखा आपने आंसर?
हाँ करेक्ट है, वेरी गुड सृष्टि, करेक्ट आंसर। सृष्टि, आई कैन नॉट सी योर आंसर बच्चा, यू हैव नॉट पोस्टेड ओनली आंसर। हाँ मेगा, मेगा का आंसर दिख रहा है, सॉरी पहले वाला। ऋषि आपका आंसर नहीं मिला। सृष्टि आर राइट, करेक्ट आंसर। राइट ऑन द यूनिट ओवर देयर, ग्राम्स पर डीएम क्यूब। यस कशिश, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द यूनिट्स, ग्राम्स पर डीएम क्यूब। देखो 4-4 मार्क्स के सम्स हैं। वेरी गुड प्रगति, करेक्ट। मेघा, परफेक्ट आंसर। कन्हैया, करेक्ट आंसर। करेक्ट है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ इतने ही लोग आंसर करते हैं हमेशा, जो भी है। यस प्रियंका, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, करेक्ट। हेली, परफेक्ट। लॉक से किया सबने? ओके ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिया इस पेपर, दे शुड एक्चुअली गिव। पागल लोग हैं, न्यूमेरिकल्स डाले ही नहीं है ज्यादा। चलो हो गया बच्चों? हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम इधर मेरी लाइट गई तो मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा तो फिर आप हेलो बाद में रिकॉर्डिंग देख लो। हेलो, इस पे हेलो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इफ यू वांट यू कैन सी इट लेटर। क्या करोगे? किसी का हॉटस्पॉट ले मैम, सकते हो नहीं घर अभी पे? चल रहा है? नहीं, सबका ही गया है। ओ, नहीं, तो फिर किसको भी कैसे ये नहीं आ करना रहा है? है। मैंने अभी मतलब मेरे फ्रेंड का लिए, फ्रेंड अभी बाहर जा रहा है। अच्छा तो क्या करोगे फिर आप? क्या करना चाहते हो आप ही बोलो। हेलो हाँ बोलो, मैम, बाद में देखोगे मैं अभी रिकॉर्डिंग तो जब बाद में देख लो। तक हाँ जब तक फ्रेंड है चलता है तब तब तक। तक करो। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। मैम, जब तक अभी फ्रेंड है मेरा। हाँ चलेगा, जब तक आपका फ्रेंड है तब तक अटेंड करो। वो चला जाएगा तो कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल से लेने वाली हूँ, सिंपल सिंपल तो हो जाएगा, डोंट वरी। और ओके शाम को सब लोग मैम। नेटवर्क अच्छा रखो, हाँ, क्योंकि शाम को मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, थर्मोडायनेमिक्स। तभी अच्छे से सब लोग नेटवर्क में आओ। डेटा वगैरह यूज मत करो ज्यादा गेम खेल खेल के। चलो हो गया, सबका आंसर आ गया मुझे लगता है। आंसर इज 1.35 into 10 raised to -4। चलो, should I proceed for the next sum? I hope everybody got this answer. टेक्स्ट के पीछे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी बच्चों? एवरीवन गॉट आंसर? अनिरुद्ध, अमीशा, आर्यन, अथर्व, जोशुआ, ये सब लोग आंसर ही नहीं करते कभी। पवन, प्रणव, श्रेया, सिद्धांत, तन्वी, दीप, प्रशांत, सानिका, आंसर आया क्या सबका? हेलो,
मुझे कभी कभार लगता है आधे लोग ही सुनते हैं, आधे लोग सुनते ही नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं, राइट डाउन। इफ, बोलू ना बच्चों, हेलो। हाँ मैम। If 20 cm cube, if 20 cm cube of 0.050 molar barium nitrate, NO3 twice, barium nitrate are mixed with, if 20 cm cube of 0.050 molar barium nitrate are mixed with 20 cm cube of 0.0, क्या लिखा है, 20 मोलार सोडियम फ्लोराइड, कॉमा, will BaF2 precipitate, question mark, will BaF2 precipitate, question mark, Ksp of BaF2 is given, which is 1.7 into 10 raised to -6 at 298 Kelvin. मुझे क्या आंसर करना है कि मेरा जो सॉल्ट है, अगर मैंने 20 cm क्यूब ऑफ बेरियम नाइट्रेट डिसॉल्व किया या मिक्स किया विद 20 cm क्यूब ऑफ सोडियम फ्लोराइड, so my question, okay, I will repeat the question. If 20 cm cube of 0.050 molar barium nitrate, if 20 cm cube of 0.050 molar barium nitrate are mixed with 20 cm cube of 0.020 molar sodium fluoride, 0.020 molar sodium fluoride will BaF2 precipitate, question mark, will BaF2 precipitate, question mark, और ये दिया हुआ है Ksp of BaF2 is 1.7 into 10 raised to -6 at 298 Kelvin. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है बच्चों, इफ यू आर गोइंग टू मिक्स दिस विद दिस, बेरियम फ्लोराइड का पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट हियर आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए ना, और मेरे पास तो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ही नहीं। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यू विल राइट डाउन हियर टोटल वॉल्यूम। व्हाट इज टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बेरियम नाइट्रेट, पहले ध्यान दो बाद में लिखो, ठीक है, आई विल गिव यू टाइम, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या था, NaF, इसका कितना वॉल्यूम था 20, इसका कितना था 20, टोटल कितना हो गया 40 cm क्यूब, टोटल वॉल्यूम निकाला हम लोगों ने। अब हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaNO3 ट्वाइस, तो एक फॉर्मूला याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये फॉर्मूला एकदम याद ही रखना बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेरियम नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.05, वॉल्यूम कितना था 20, टोटल वॉल्यूम कितना था 40, ये समझा। अभी कैसे करूँ इसको, पॉइंट शिफ्ट कर देती हूँ सब, ठीक है, 5 into 10 raised to -2 into 2, चलो इसको कैंसिल ही कर देते हैं, तो 2 हो गया डिवाइडेड बाय 4 हो गया, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2.5 आएगा ना, 2.5
इंटू 10⁻²। समझा ये? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.025 मोलार लिख सकते हैं। ये स्टेप समझा? Yes, नाउ ma'am. हाँ, अभी हम क्या करेंगे? वी विल डू सोडियम फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन, सेम फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ओके बच्चों, हाँ। अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.02। वॉल्यूम कितना था? 20। टोटल वॉल्यूम कितना था? 40। तो ये तो चला ही गया। अब क्या करो? 2 इंटू 10⁻² इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4। 2 1 जा, 2 2 जा, ये सब कैंसिल हो गया। मतलब क्या आएगा? 0.01 आएगा ना। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन मिल गया हम लोग को अभी। चलो अभी क्या करने का है अपने को? एक सेकेंड ना, आईपी निकालने का है ना। तो आईपी के लिए मुझे बेरियम फ्लोराइड चाहिए। सो आई विल राइट डाउन बेरियम फ्लोराइड विल डिसोशिएट एज Ba2 प्लस एंड F माइनस। करेक्ट? F माइनस मतलब कितना F माइनस रहेगा? 2F माइनस रहेगा, बराबर ना। तो यहाँ पर Ba2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? 0.025। देखो इधर, क्योंकि यहाँ पे क्या था? बेरियम था ना, तो बेरियम का कॉन्सेंट्रेशन ये लेंगे, और फ्लोराइड इधर था, तो फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ये लेंगे 0.01। क्लियर? तो अभी आईपी कैसे आएगा? आईपी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस रेस टू 2। कितना करोगे सॉल्व? विल यू सॉल्व दिस? ये सॉल्व करके इसको किसके साथ कंपेयर करने का? KSP के साथ। अगर ज्यादा आया तो इट विल प्रेसिपिटेट, कम आया तो इट विल नॉट प्रेसिपिटेट, और इक्वल आया मतलब इट इज इन द इक्विलिब्रियम। समझा ये सम सबको अच्छे से? पहले बोलो किसको नहीं समझ में आया। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? फर्स्ट यस ऑफ मैम। ऑल यू कॉपी, हाँ यहाँ तक पहले कॉपी करो, इधर तक, और फिर मुझे पूछो अगर नहीं समझेगा कुछ तो। ठीक है, फिर मुझे बोलो, मैं कैमरा नीचे करती हूँ। दिख रहा है ना बच्चों? नहीं समझा ऋषि आपको बेटा? हेलो, आपने किस चीज का नो लिखा? डाउट नहीं है उसका नो लिखा कि नहीं समझ में आया वो लिखा? देखो एकदम थोड़ा सा लॉजिकली करोगे ना बच्चों तो आपको आ जाएगा सब। ये लास्ट सम था KSP का, हाँ बाकी सब हो गया अपना, सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, टेक्स्ट के पीछे के भी सब ले लिए। मैं तुम लोग को इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर्स दे दो। एंड इफ यू वांट टू सॉल्व मोर सम MTG में 11th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर है, ये अपने को 12th में है। इन MTG दिस इज देयर इन द 11th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर का। यू कैन सॉल्व सो मेनी एग्जांपल्स, सो मेनी न्यूमेरिकल्स फ्रॉम देयर। एकदम इजी है, एकदम इजी। एंड प्लीज गो थ्रू द चैप्टर। कुछ भी नहीं समझा होगा यू कैन इजीली आस्क, फील फ्री टू आस्क। नीचे करती हूँ थोड़ा, ऊपर वाला हो गया ना। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर बोलो हाँ मुझे, एंड टेल मी वेदर इट विल प्रेसिपिटेट और नॉट। हाँ बोलो, हेलो। नहीं समझ में आया ऋषि आपको? सी what I said, we have a total volume 20 40 हो गया। First of all we'll calculate the concentration of this barium nitrate. So there is one formula, concentration into volume upon total volume. What was the concentration of barium nitrate? 0.05 it was given। वॉल्यूम कितना लिया था? 20। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 40। तो इससे आपको क्या मिला? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम मिला। ठीक है, देन सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड सोडियम फ्लोराइड, सेम फॉर्मूला लगाने का। concentration of sodium fluoride is also given, which is 0.02 molar, volume is 20 divided by 40। तो यहाँ से मिल गया फ्लोराइड का concentration। ठीक है, I have to calculate the IP which is ionization potential because KSP is given। कल ही बताया था ना मैंने IP और KSP का क्या रिलेशन है। It will help you to find out whether the precipitation will takes place or not।
करेक्ट. सो आई विल कैलकुलेट हियर बेरियम फ्लोराइड. अभी देखो इक्वेशन कैसे आएगा, Ba2 प्लस प्लस 2F माइनस आएगा ना. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, Ba2 प्लस एंड F माइनस रेस टू 2. अभी Ba किधर से मिला, इधर था, तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन फॉर Ba. F किधर था, इधर था, तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन फॉर F. उसका स्क्वायर करो, आंसर निकालो, एंड देन कंपेयर दिस विद दिस KSP. ये रहा, किधर गया KSP, किधर गया, ये रहा KSP. अगर IP आपका KSP से बड़ा आता है मींस प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस, छोटा आता है तो प्रेसिपिटेशन विल नॉट टेक्स प्लेस, और इक्वल आ जाता है एग्जैक्ट मींस इट इज एट द इक्विलिब्रियम. समझा अभी ऋषि? हाँ बराबर है, करेक्ट है आंसर, करेक्ट. प्रियंका, व्हाट इज द आंसर, टेल मी दैट आंसर. कितना आया, बड़ा आया, दैट इज करेक्ट. प्रियंका, IP बड़ा आएगा तो प्रेसिपिटेशन होता है. ये देखो, भूल गए. When IP is greater than KSP, precipitation will takes place. हाँ समझा, गड़बड़ मत करो. हाँ करेक्ट, करेक्ट आंसर है कशिश, परफेक्ट आंसर. तो लिखो स्टेटमेंट, IP is greater than KSP, therefore precipitation will takes place. बट मुझे उसका आंसर बताओ. अभी मैंने हिंट दे दिया, you will get IP ionization potential greater than solubility product. सो हाँ बराबर है कन्हैया, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड. वेरी गुड, एवरीबॉडी इज गेटिंग करेक्ट आंसर. आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग को समझ में आया, आप लोग करते हो अच्छे से. थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा. सब ध्यान भटका देते हैं ना तो नहीं समझ में आता है, फिर नहीं अच्छा लगता है. बताओ क्या आंसर. 2.5 into 10 raised to minus 6 है. यस करेक्ट. तो अभी देखो 2.5 है और ये 1.7 है, बड़ा हो गया ना. IP is greater than KSP, therefore precipitation will take place. ये आपको नीट में भी पूछ सकते हैं ना, दिस इज अ सॉल्ट, whether the precipitation will takes place or not. कितना इजी है. Basically here we have completed with the chapter. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. एक मिनट मेगा, आपका आंसर चेक करती हूँ. हाँ मेगा, करेक्ट है. देखो आपने कैसे किया, आपको 25 into 10 raised to minus 7 मिला ना, तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे तो 2.5 into 10 raised to minus 6 ही हो जाएगा, बराबर है. किसी भी हालत में कौन सा हाँ समझा. अभी कैसे ना बच्चा, अपने को कंपेयर करने का है ना, तो ट्राई करने का कि पावर हम लोग थोड़ा सेम लेके आ जाए. करेक्ट है आपका आंसर. कंपेयर करने के टाइम पे बच्चों पावर भी देखना है, याद रखो. फिनिश्ड एवरीवन. अभी मेरे पास कुछ सवाल हैं आप सबके लिए. मतलब पहले जितने न्यूमेरिकल्स किए थे सब कुछ मिक्स, तो मैं 3-4 क्वेश्चन देती हूँ. आई विल गिव यू 10 मिनट्स, फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर्स पोस्ट करो. रेडी. मैंने सॉल्व प्रॉब्लम्स भी सारे ले लिए, हाँ सारे के सारे. ऑल सॉल्व प्रॉब्लम्स आई हैव टेकन एंड ऑल द टेक्सचुअल क्वेश्चन जितने पॉसिबल है सब ले लिए, जितने हैं आपके टेक्स्ट के पीछे सभी ले लिए हैं. ठीक है, कुछ रह गया होगा तो प्लीज चेक, और मुझे पूछ सकते हो आप लोग बहुत फ्रीली. चलो रेडी फॉर द क्वेश्चंस बच्चों. अभी क्वेश्चन देती हूँ मैं तुम लोग को, सॉल्व करो. एक मिनट ठहरो जरा. पहला क्वेश्चन सब लोग अपना अपना सॉल्व करेंगे. यू कैन रिफर ऑल द न्यूमेरिकल्स व्हिच वी हैव डन. पहला क्वेश्चन, ये लिया है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा. देखो जरा लिया है क्या. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 into 10 raised to minus 5. कैलकुलेट
परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड? किया है? नहीं किया शायद। लिखो पहला क्वेश्चन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड is 1.8 into 10 raised to minus 5. Calculate percentage dissociation of 0.01 molar solution. ये आपका पहला सवाल। दूसरा, pH of 6.06, pH of solution is 0.06. Calculate H plus ion concentration. ये आपका दूसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट pH of 0.01 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड। चलो कितना टाइम लगेगा इतना सॉल्व करने को? आंसर्स मेरे पास भी नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिए थे मैंने ढूंढ ढूंढ के लिख डाले, तो जो सबका कॉमन आंसर आएगा वही आंसर है। करोगे सॉल्व? Yes or no? Are you able to do this? परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालने का, अल्फा। ये तो आप पता है, अभी पीएच दिया हुआ है, H प्लस निकालने का है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, पीएच निकालने का है। चलो कर लो, इतना हो जाएगा तो बोलो। We will get 10 minutes. 11:37 हो रहा है, 11:47 को we will discuss the answers. आ रहा है क्या बच्चों? Should I help you? This is Ka, और अपने को क्या निकालने का है? अल्फा। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ka बाय C। देखो हेल्प कर दिया मैंने, इजी है एकदम सम।
I'm getting some answers. सबको अलग अलग आंसर आ रहा है. प्रगति got 1.8 into 10 raised to minus 7. मेगा got 1.8 into 10 raised to minus 3. देखते हैं बाकी लोगों का देखते हैं. अच्छा, एक ध्यान में रखना, ये ठीक है बट यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, तो याद रखो सल्फ्यूरिक एसिड will dissociate to give you 2H plus and SO4 2 minus. तो जो भी H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उसका डबल रहेगा ठीक है. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. समझ रहे हो? तो यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, सो इट विल बी डबल. तो कितना हो जाएगा 0.02. ये ध्यान में रखना, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के ये वाला सम दिया है. अंडरस्टूड दिस? क्या बोला मैंने? इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड whatever the concentration is there, because we are having here 2H plus ions, तो ये ऐसा हो जाएगा. क्या हुआ प्रगति? क्या लिखा है? पहला रॉन्ग है. अच्छा 1.276 into 10 raised to minus 6 आ रहा है क्या? ठीक है, बाकी लोगों का देखते हैं. मेरे पास आंसर नहीं है बच्चा. I need to solve. Let everybody solve this. ये समझा सबको? सल्फ्यूरिक एसिड वाला ध्यान में रखो, ये यहाँ पे गड़बड़ होती है बच्चों की. We are having here 2H plus ions और ये एक ही H plus ion का concentration है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे और फिर उसका pH निकालना. सॉल्व करूँ क्या? ऊपर वाला अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka बाय C. K कितना है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय C कितना है 0.01, मतलब 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2. माइनस 2 पर जाके 10 रेज़ टू माइनस 3 हो जाएगा. 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. मेघा और प्रगति दोनों मार खाएंगे अभी. स्क्वायर रूट कौन निकालेगा इसका? स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 हो जाएगा. हाँ माइनस 2 इसीलिए हो बाद जाएगा. में किया वो. हाँ, दो गाना धू धू धुना रहता था. थांबा, इतना लिख के मुझे आंसर बता रहे. देखो फिर इसका हाफ करके लॉग करके 18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2. ये समझा सल्फ्यूरिक एसिड का? याद रखो. अच्छा, अगर ये होता अपने पास फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो क्या करते? इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते. ठीक है, प्लीज मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट. आराम से करो, कोई घाई नहीं है, अपना चैप्टर हो गया. डोंट वरी. शाम को 4th चैप्टर लेती हूँ, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स. पेपर 1 फिर मैक्सिमम हो जाएगा तुम लोग का. ये पीएच वाला आता है ना, कल सिखाया था. H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. कशिश को अलग आ रहा है, तुम लोग को अलग आ रहा है. क्या करूँ मैं अभी? सब लोग मुझे अलग अलग आंसर बोल रहे हैं. चलो मैं ही चेक करती हूँ. यश कितना आंसर है? एटीन का लॉग 0.255 था, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 1.34, ऐसा कुछ तो आंसर आएगा. मैम 18 का लॉग 1.255 किया है. हाँ ओके ओके, 1.255 बराबर. उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे.
है ना। फिर उसका एंटी लॉग निकालेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.62765, उसका हाँ एंटी लॉग है करेक्ट। 4.242। हाँ मतलब कशिश का बराबर है 4.242 इंटू 10 टू कितना है? -2 कशिश है का मैम। बराबर, हाँ बराबर है। कन्हैया का भी करेक्ट है, करेक्ट। बाकी के लोग जरा चेक करो अच्छे से। अभी तुम लोग देखो पहले क्वेश्चन में ही है, मुझे लगा 10 मिनट में तीनों सॉल्व करके मुझे बता देंगे। क्या बच्चे हैं, मोबाइल यूज करते हैं 4G वाला और खुद 0G का स्पीड है। डिले है तुम लोग बहुत। ये चैप्टर सबको अच्छे से समझ में आया है ना? जितने भी डेरिवेशन सिखाए हैं सब अच्छे से करो, सब। Everything is important and read each and every line of the chapter, each and every line. शाम को ना बच्चों मेरा 8:10 तक एक दूसरे क्लास का लेक्चर है, तो तुम लोग है ना 8:10 पे लॉग इन करना, मैं सर को बोलती हूँ। तो मैं वहां से 10 मिनट एक्सटेंड कर दूंगी, ठीक है? हाँ बराबर है आंसर। ये सृष्टि करेक्ट आंसर। तुम लोग 8:10 पे लॉग इन करना, फिर मैं वहां से 10 मिनट बढ़ा दूंगी आपका, बिकॉज आई हैव लेक्चर 6:30 to 8:10। प्लीज हाँ, सिर्फ आज एक सैटरडे वाला ही थोड़ा ऐसे करना, क्योंकि मुझे और भी एक जगह लेक्चर है। हो गया क्या तीनों सम? हाँ करेक्ट। अच्छा 10⁻² नहीं है बेटा, 10⁻5 नहीं है, 10⁻² है। पहले वाले का बता रहे हो ना आप? -2 वाला बराबर था। -5, अच्छा तुमने -5 ही लिखा था, -2 बराबर है। चेक कर लो, थोड़ा इधर उधर हुआ रहेगा कुछ तो। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट किया। बहुत इजी है सेकेंड वाला तो। किया था ना, -1 +1 करके, वैसे करना है। याद है कि भूल गए? और वो सल्फ्यूरिक एसिड का ध्यान में रखना। ओके, कशिश का आंसर आ गया है, बाकी लोगों का वेट करते हैं। लेट्स सी कशिश बाकी के लोग क्या आंसर करते हैं, तब तक आप दूसरा सॉल्व करो। बाकी सब लोगों की मुझे नीयत नहीं लग रही है अभी आज सॉल्व करने की, इतना धीरे धीरे कर रहे हैं।
हुआ क्या बच्चे लोग, नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? प्लीज सॉल्व करो। The chapter which I'm going to teach in the evening is very, very, very important, thermodynamics. So please don't remain absent. What is the answer for the second one? कुछ तो बोलो, नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? Should I help you? क्या रो रो के कर रहे सब? Log to the base 10, concentration of H plus 6.06 minus log to the base 10, concentration of H plus, फिर क्या हो जाएगा? Log to the base 10, concentration of H plus is equals to minus 6.06. Taking antilog on both the sides, concentration of H plus is equals to antilog of minus 6.06. तो क्या करेंगे? -6 minus 0.06, तो इधर -1 +1, -1 जाएगा इसके साथ, मतलब -6 -1 और +1 में से 0.06 को माइनस करो। कितना इजी है, कशिश का बराबर आंसर आया है, मतलब -7। हाँ, -5 नहीं आएगा, 7 में आएगा, -7 में देखो ना, इधर -7 है एंड 0.06, तो ये कितना हो जाएगा? 0, ये 9, ये 10, ये 4, ये कितना हो गया? 94, 0.94 -7.94, 94 का एंटीलॉग देखो। हाँ, -6 आया क्या? -7 आएगा? कितने क्या करके रहे हो तुम लोग भाई? हाँ बराबर है, -6 आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी, करेक्ट। -5 नहीं आएगा सृष्टि, थोड़ा चेक करो। समझा क्या ये सम? कितना रो रो के सॉल्व कर रहे शी बाबा, इधर ही 12 बजा दिया। चलो अभी ये सम घर पे करो, होमवर्क है तुम लोग का। अभी 3 मिनट है, जितना होता है उतना करो एंड टेल मी। बराबर है जोशुआ आंसर? सर बाकी के लोग तो सोए हैं ऐसे लग रहा है मुझे। आधे लोगों ने तो लीव भी कर दिया, वाह वाह, सही है। ओके ओके, प्लीज मेगा, यू कैन लीव। वेलकम, बट डू सॉल्व दिस सम घर पे। सल्फ्यूरिक एसिड वाला सॉल्व कर लेना। यस तन्वी, ओके ओके। ऐसे 2 मिनट में सम सॉल्व होता है, इतना आराम से कर रहे हैं, क्या बोलूं मैं अभी तुम लोग को। (10⁻⁵) आ रहा है सृष्टि आपको? कशिश उसको जरा तेरा सम भेज दे बाद में।
-6 इज करेक्ट बेटा। किधर होगा, इधर छोटा मोटा मिस्टेक हुआ रहेगा। कशिश के पास से ले लो, कशिश उसको फोटो भेज देगा तुम्हारे सम का जो तुमने सॉल्व किया है, सृष्टि को। ये तो कितना इजी है, ओरल आंसर आ जाएगा। इसको 2 × 10⁻² करो, तो 2 का लॉग। हाँ अच्छा, 10⁻7 है क्या? ठीक है, सॉल्व करो, फिर मैं बाद में देखती हूँ क्या है ये सब। नहीं आएगा तो आई विल सी। सब लोग चेक करो घर पे कितना आंसर आता है। -5 आता है, -6 आता है, -7 आता है। ये सॉल्व करके मुझे शाम को कंफर्म करेंगे तुम लोग। क्वेश्चन लिखा है ना ये वाला, सल्फ्यूरिक एसिड वाला? ठीक है चलो, दैट वन क्वेश्चन इज योर होमवर्क। सॉल्व इट एंड रिपोर्ट इट इन द इवनिंग। ठीक है, इवनिंग को प्लीज लॉग इन बाय 8:10। ठीक है, पर 8:10 को शार्प आ जाना तुम लोग। 8 बजे से ही लॉग इन चालू कर देना। चलो एंड करूँ मीटिंग। कुछ पूछना है किसी को? इज इट वेरी क्लियर? आई होप चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, बाय बाय। ठीक है चलो, बाय बाय, टेक केयर बच्चों। थैंक यू फॉर सिटिंग नाइसली। बाय बाय, हैव अ गुड डे।